How to join Merchant Navy in 5 simple steps. Number 1, eligibility. Number 2, exams. Number 3, medical. Number 4, college or course which you want to do. Number 5, the most important one, sponsorship. So without wasting any time, let's begin. Music. Audio Jungle. Before starting this video, let me introduce myself. My name is Arpit. कुछ पूछा मैंने कुछ Joining Merchant Navy is as simple as skate on skateboard. Really, I mean there are two ways generally. If you want to join Merchant Navy after 10th, then you need to have more than 40%, right? And if you want to join after 12th standard, you need to have PCM in your 12th and make sure you get more than 60% for the exam criteria. That's it, these two. So after these two, we'll look forward towards step number 2. Okay. Step number 2, exams. So it is almost like your RTO exam which you give for your license, but in this case IMU CET is the exam which you need to give for Merchant Navy entrance. IMU CET is the exam which So it is basically happens 2 times in a row. एक साल में 2 बार होता है, in the month of August and the second in the month of February. It is mandatory to give. ऐसा नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि सर बिना IMU CET के एग्जाम पॉसिबल है. तो एक कॉलेज है मेहनत बिना IMU CET के, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि ये IMU CET एग्जाम दो. इट्स नॉट अ बिग डील. मैं निकाल सकता हूँ तो तुम भी निकाल सकते हो. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल पीछे से ले, पीछे से आगे. स्टेप नंबर 3. सो ऐसा लग रहा है DID की तैयारी चल रही है, विच इज़ मेडिकल, राइट? तो रिगार्डिंग मेडिकल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स आर आइज. सो इफ यू वांट टू अप्लाई इन टेक डिपार्टमेंट, देन योर विजन शुड बी 6/6, and if you want to apply for engine department, then your vision should be 6/12 or 6/9 in better eye, or 6/19. You need to concern with your college which you want to apply, or with your company as well. And regarding other stuff, make sure आपको color blindness नहीं होनी चाहिए, because रात के टाइम में फिर आप क्या करोगे? लगता है बर्फ पड़ने वाली है. And other than that, knockness नहीं होनी चाहिए. Your physical appearance should be good enough. BMI index. Wait a minute. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार. क्या कर रहा है Generally ज़्यादातर केस में नहीं पूछा जाता, but still you need to have fit physique. Step 4, college or courses. Just like you make sure कि आज क्या पहनना है, you need to be very sure about your courses and college. First of all, we'll talk about courses, then college, and later on, according to that, we will describe what colleges you need to be selected. Let's go. चलो. So now you need to decide तुम्हें जाना किधर है, इंजन साइड और डेक साइड. तो मोस्ट ऑफ द केसेस लाइक कि उसके घर वाले बोलते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, बट तुमको मर्चेंट नेवी में जाना है, देन फॉर यू गाइस मरीन इंजीनियरिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इट इज़ फॉर 4 years. अगर जिसको लगता है कि हाँ मुझे डेक साइड जाना है, मुझे नेविगेटिंग ऑफिसर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, हमसे ना हो पाएगा, देन यू कैन गो फॉर PSc इन नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, विच इज़ सो कॉल्ड DNS. DNS हमारा 1 साल का होता है, BSc हमारी 3 साल की होती है. एंड आई विल रिकमेंड कि गो फॉर DNS, बिकॉज DNS और BSc ख़त्म करने के बाद द प्रोसेस इज़ ऑलमोस्ट सेम फॉर सेकेंड मैथ्स. बस तुम्हारा BSc में C टाइम 18 months का नहीं 12 months का होता है, और जो DNS में होते हैं तो दोज कैंडिडेट्स सपोज टू हैव मोर देन 18 months C टाइम. ठीक है. I hope so far everything is clear now, but still एक केस और. भैया एक्चुअली मैंने 10th के बाद कॉमर्स ली थी. वो एक्चुअली शीतल ने मुझसे बोला था कि कॉमर्स ले लेना, तो इसी चक्कर में मैंने कॉमर्स ले लिया. तो शीतल नहीं, वो तो साइंस वाले राहुल के साथ. The other way to join Merchant Navy is on the basis of your 10th.
So from 10th standard, you can join as a GP rating. The course duration is something around 6 months, and I'm putting one poster on the screen. Just have a look. Now let's move towards colleges. तो if इतना सब क्लियर है, let's move towards next step, college. Right now current scenario is this कि इंडिया में more than 1000 maritime colleges हैं. Most of them are not DG approved. So first thing first, you need to see कि आपका कॉलेज DG approved है या नहीं. तो दैट यू कैन फाइंड इट ऑन द DG वेबसाइट. एक लिस्ट होगी, उसमें सारे कॉलेजेस के नाम होंगे, राइट. सेकेंड स्टेप, इफ़ यू आर स्पॉन्सर्ड देन इट डजेंट मीन कि आपको कोई कॉलेज देखने की ज़रूरत है. तो आई विल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि अगर आप इस कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो तो दैट कंपनी विल ऑटोमेटिकली टेल यू कि आप यहाँ से कोर्स करो, उस पर्टिकुलर कॉलेज से या फिर उस पर. बट अगर आपने कोर्स कर लिया और आप स्पॉन्सर्ड नहीं हो तो उसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. सो पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ मैं कि आप प्राइवेट कॉलेजेस अप्रोच करो इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज. आई नो कि भाई ये क्या बोल रहे हो, गवर्नमेंट की फ़ीस बहुत कम होती है, प्राइवेट की बहुत ज़्यादा होती है, बट बाद में फालतू घूमने से तो अच्छा ही है. बिकॉज प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अप्रोच करोगे तो दे आर स्लाइट चांसेस कि वो पहले स्पॉन्सरशिप आपको प्रोवाइड कराएंगे, विच हैपन्स. लाइक दिल्ली में ARI है, IMI है, पॉपअप हो जाएंगे नेम्स आई थिंक, और एंग्लो है, तुलानी है. यही नहीं, अभी और सुनिए. So let's move towards our final step, which is sponsorship. So many companies are there जो कोर्स करने से पहले स्पॉन्सरशिप कराती हैं. MSc is there, Tome is there. सिनर्जी हमेशा कोर्स के बाद आपको पेपर कंडक्ट कराएगी साल में, अगस्त में होता है वो पेपर आई गेस. और दे आर सेवरल मोर कंपनीज. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, एक बार लिंक पूरा अच्छे से, वो डिस्क्रिप्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसमें सारी चीज़ें दी होंगी. तो प्राइवेट कॉलेज से करने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. तो प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं कि ये लोग आपको ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करा देते हैं पहले, इंस्टेड ऑफ आपको बाद में ढूंढने के. बट कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं जहाँ वेटिंग पीरियड रहता है. जैसे बहुत से कॉलेजेस हैं वहाँ 1-6 महीने का वेटिंग पीरियड है, समुद्रा में वेटिंग पीरियड है. बट वो आपको खुद देखना पड़ेगा बिकॉज रश आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है मर्चेंट नेवी में. तो डू नॉट फूल योर सेल्फ कि हाँ मुझे मर्चेंट नेवी जाना ही चाहिए जस्ट बिकॉज पैसा अच्छा है या फिर है. इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल कि हाँ मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, देन आई विल डेफिनेटली सेड कि आप वो चूज़ करो इंस्टेड ऑफ दिस. बट हाँ, इफ़ यू हैव नो अदर ऑप्शन कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, देन यू आर वेलकम. करना है नहीं करना, करना है तो करना करो फिर. सबर कराई सर whatever. I hope everything was clear. If you still have any doubt, you can ask me in the comment section, या फिर I have also Instagram, तो आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हो. And feel free to subscribe. Thank you so much. Goodbye. Take care. Sayonara.